So that's the basic prerequisite, need which needs to be done. रविंद्र सर, देर आर अ फ्यू पीपल जो अपने लास्ट अटेम्प्ट में होते हैं और उनका उनकी एज लिमिट भी जा रही होती है और उनका लास्ट अटेम्प्ट स्टार्ट होने वाला है। तो उनके पास सिर्फ वो 1 ईयर का टाइम होता है कि हाँ ठीक है, मुझे 1 ईयर में ही क्रैक करना है या फिर नहीं करना है, जिसमें कि चांसेस होते भी हैं कि दे माइट क्रैक दिस एग्जाम एंड ये भी चांसेस होते हैं कि दे माइट नॉट। सो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा दैट हाउ शुड दे कीप देयर माइंड फोकस्ड टुवर्ड्स द एग्जाम? बिकॉज़ कहीं न कहीं एक इनसिक्योरिटी भी होती है कि सिर्फ 1 साल है, उसके बाद नहीं कर पाएँगे। See, it is not that you have to clear this exam. You had to work hard. So clear hoga nahi hoga. Again, I'll come to that point. But yes, insecurity that will happen. Once you start giving it for the first time, that insecurity would be there, and it will end only when your name will be there in the list. So that insecurity will be there. In our case, I mentioned about me. Safin mentioned about himself. So that is there. So that will happen only when you're selected, of course. And if you are bothered about that insecurity, I think you will not be able to move ahead. Insecurity, or something like disgusting, or what will happen after this. There will be a lot of apprehensions in your mind. तो वो होनी ही है. और वो मतलब जेन्युइनली सबके साथ में होती है. कोई ये बोले कि मेरे को 100% मालूम था कि मैं क्लियर कर जाऊंगा, या मैं टॉप कर जाऊंगा इसमें. कोई बोल नहीं सकता इस एग्जाम में, बिकॉज इट इज सच अ डाइवर्स एग्जाम. और ये डाइवर्सिटी मेक्स दिस एग्जाम वेरी अनप्रिडिक्टेबल. सो अनप्रिडिक्टेबल ये है, तो फिर उसमें रिजल्ट कुछ भी आ सकता है. बट आपको एक चीज मालूम होगी कि आपने दिल से प्रिपरेशन की है. जैसे सफिन ने बोला कि मुझे मालूम था कि मैंने दिल से प्रिपरेशन किया. मेरा भी ऐसा ही था. जो 3-4 साल में पढ़ा, तो फुल्ली डेडिकेशन के साथ में पढ़ा. और उसके साथ में जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट मिला. अब मैं ये समझूं कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा, या फिर मैं चलो ये भी एग्जाम दे देता हूँ, इसके लिए भी पढ़ लेता हूँ, कि मैं 2 महीने इसके लिए पढ़ लूंगा. इट डजेंट हैपन दैट वे. I think that only I can tell you what I can say. I So think I think Safin sir's internet is uh, not working well. yeah, little. So can you check with Mr. Sikera? He was supposed to be Yes, there. sir. Just wait, sir. So, and just in case there is no backup, like some people do not have a backup. Mostly, officers tell us that have a backup plan, have a backup plan with you. But कभी-कभार ऐसा होता है कि किसी एस्पिरेंट के पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता. मे बी शायद उन्होंने आर्ट्स ली होती है. दे डू नॉट नो कि उसके अलावा बिकॉज़ उसके पीछे क्या-क्या उनके पास और ऑप्शंस हैं और फिर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो क्या उनको अपना टाइम पूरा इन्वेस्ट करना चाहिए लाइक 3-4 इयर्स का इन दिस एग्जामिनेशन? Without a backup plan? See, this is highly a personal choice. But जैसे मैं इंजीनियर था, मेरे पास में जॉब भी थे. I resigned 2-3 jobs at one go. I was selected in CISF, but next year I had one, but I didn't want to continue there. So that risk you will have to take. And I was already working with GAIL, Gas Authority of India Limited. You see, अगर आपको कुछ बड़ा एम है आपका, बड़ा ऑब्जेक्टिव है आपका, तो आप उसी के लिए सोचेंगे. और मैं अगर प्लान बी तैयार के करके चलता, तो शायद मेरा फोकस चेंज हो सकता था. ऐसा बहुत बारी होता है. तो उसमें क्या दुविधा जब मन में रहती है, देन यू आर शेकी, यू आर नॉट क्लियर समटाइम. ऑफ कोर्स रिजल्ट कैन कम इन एनी डायरेक्शन. बट मुझे ऐसा लगता है कि plan A, plan B, or plan C, whatever people say, I don't believe in that. What do you want to do? You have to do. Like any Olympic champion, if they have to win a gold medal, they only think about gold medal. I've seen many posts on YouTube wherein people took a gap. Again, they entered into Olympics and they again won the gold medal. It happens because they were working only for that goal. They didn't think, if I'm not getting gold in this, I'll try for bronze medal in this, or I'll keep this ready. Doesn't happen that way. So plan A or plan B, I think this has been my philosophy. Even today, if I have to do something, I decide and then go in for it. I don't see whether the result will be negative. If I keep on
focusing that result would be negative, that I think I won't be able to focus more on positivity. Nothing, we were discussing about plan B. Yes, sir. Yes, sir. Sorry, I got a call and then it got disconnected. I tried actually joining with Wi-Fi, but it didn't work. So I'm using mobile data right now. So Yeah. if there is any further issue, but yeah, regarding Plan B, I guess there was a series, sir. If अगर आपने देखी हो, Aspirants. Yeah. So it has focused on Plan B in the last episode, I guess. But yes, I guess there is particular time when you need to think about Plan B, not from the initial time. Once you start preparation, you should only have that is Plan A and only Plan A. You should give your sincere attempts. आपको 2-3 अटेम्प्ट सिंसियरली देने चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि आपके पास और कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है. 3 अटेम्प्ट के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी चांसेस कम है या फिर श्योरिटी नहीं है, देन देर इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग फॉर प्लान. बट प्रॉब्लम ये होता है कि अगर शुरू से इफ यू नो स्टार्ट मेकिंग प्लान बी, देन आई एम श्योर दैट यू वॉन्ट बी एबल टू गिव योर 100% टू योर प्लान ए. So when you start something new, when you start preparation, I believe that there should not be any plan B. I didn't have any plan B because मैंने just college से graduation finish किया था. I had that financial pressure कि घर का बड़ा बेटा है, middle class परिस्थिति है, तो you should start earning for your family. बट उस प्रेशर में आई डिसाइडेड कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा, क्योंकि अगर मैं प्लेसमेंट में बैठा और मुझे जॉब मिली तो फिर वो डिलेमा आ जाएगा कि यार जॉब कंटिन्यू करूँ या सिविल्स में जाऊँ. Once I was determined, I decided not to sit for placement and I appeared for exam. Yes, उस टाइम भी मेरा कोई प्लान बी नहीं था. अगर 2-3 अटेम्प्ट के बाद आई फेल्ट कि मुझसे नहीं होने वाला या फिर अभी और टाइम लगेगा, तब मुझे स्टार्ट करना चाहिए प्लान बी के बारे में सोचने के लिए. सो माय सिंसियर इनपुट इज देयर शुड नॉट बी एनी प्लान बी इन द इनिशियल फेज. आफ्टर सम टाइम यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्लान. राइट सर. सर लेकिन अगर सपोज किसी के अंदर, मतलब जैसे सर ने, रविंद्र सर ने बताया कि ही लेफ्ट हिज जॉब फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो इस तरीके का पैशन, इस तरीके का कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, इसको आपको मतलब कैसे पता चला कि आई हैव दैट पैशन कि मैं इस एग्जाम के लिए बैठ सकता हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कुछ कर पाऊंगा, इसमें कुछ ना कुछ आगे कर पाऊंगा? तो ये कॉन्फिडेंस और ये पैशन कैसे आता है? ये कॉन्फिडेंस और एक पैशन तब आता है व्हेन यू आर वेरी क्लियर अबाउट योरसेल्फ. आई वुड जस्ट टेल यू कि लाइफ में ऐसा होता है कि हम काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स जो है वो बाहर के लोगों के लेके घूमते हैं कि अगर कोई और बोलेगा, अगर मेरे टीचर बोलेंगे, अगर मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे, अगर मेरा लाइफ पार्टनर या मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बोलेंगे कि तुमसे एग्जाम क्लियर हो पाएगा या तुमसे नहीं हो पाएगा, एंड देन आई स्टार्ट बिलीविंग ऑन दोज फैक्ट्स, और उसकी वजह से वो क्लैरिटी खुद के बारे में नहीं आता. What I would suggest every aspirant to go is कि they should sincerely self-analyze themselves कि उनको लाइफ में क्या चाहिए. Right? I always needed a job जहाँ पे मेरे पास public dealing हो, मैं लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, लोगों के issues sort out कर सकता हूँ, and I enjoy that work. मुझे पता था कि मुझे जो जॉब सेटिस्फेक्शन लेना है वो शायद सिविल्स में ही आ सकता है और किसी कॉर्पोरेट जॉब में या और तरीके से नहीं आता. एंड दैट्स हाउ आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे सिविल्स में बैठना है. राइट. एंड जब आप खुद के बारे में क्लियर होते हो, व्हेन यू हैव एनालाइज योरसेल्फ इनफ, तो आपको ये भी पता होता है कि यस, आप अगर मेहनत करोगे, आप अगर सही डायरेक्शन में एफर्ट डालोगे, तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू सक्सीड. सी, सक्सेस की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता कि हाँ आपको यूपीएससी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन आप इतनी गारंटी दे सकते हो कि आप अपना 100% दोगे. बाकी तो फिर गीता जी में भी कहा है, और देयर इज अ जनरल लॉ कि आपके हाथ में कर्म है, उसका फल क्या मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं. तो अपनी टाइम और एनर्जी ये सोचने में खराब करने की वजह कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, हम वो टाइम और एनर्जी इस चीज़ में इन्वेस्ट करें कि हमसे कितना हो पाएगा. उसके बाद जो देना है और जो मिलना है वो हम यूनिवर्स पे, ईश्वर पे छोड़ सकते हैं. एंड आई एम श्योर कि अगर राइट डायरेक्शन में सही इंटेंशन से मेहनत की जाए तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए. Right, sir. Sir, sorry to interrupt, but I think the team is working with Navneet sir कि कैसे join करना है. I think he is having some problem with joining in this session. Okay. So We, we, we we are can working towards it. one or two questions if you feel, or we can. No, sir.
रविंद्र सर, अभी बहुत सारे आपको पता होगा कि अभी फिलहाल में इंटरव्यूज का नोटिफिकेशन आ चुका है, और कई बार ऐसा होता है कुछ सारे बच्चे हैं जिनका मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो आने वाले टाइम में इंटरव्यू से भी आउट होंगे, और उसके जस्ट लाइक 20 या 30 डेज बाद ही प्रीलिम्स आ जाएगा वापस से। तो उनका माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है, मतलब दे माइट बी हैविंग दैट स्ट्रेस कि अभी अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वी जस्ट हैव अ मंथ टू प्रिपेयर फॉर अनदर अटेम्प्ट। तो उनको कैसे, उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा, क्या एडवाइस होगी उनकी? तो मुझे लगता है जो ऑलरेडी हैं तो दे आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड। उनको उनको अपने मन को ये बोलना चाहिए कि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ। दैट पॉजिटिविटी दे कंटिन्यू विद। दे शुड नॉट फील कि मेरे पास एक ही महीना। देखिए, आप करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे हो, आपका ऑप्शन हो सकता है वही ऑप्शन मेंस में सेट और देखिए वो सब हो ही चुका है आपका। the only thing that you should all you have time you can prepare for the interview है। most of the in fact they will be equipped। उनको तो ये समझ के चलना चाहिए, मैं इसी तरह से प्रिपेयर करता रहा या तो I'll get into it। they to be in the positive frame of mind। they should not give they should not feel कि भाई ये कुछ से मुझे पड़ रहा है। वो समझें इनफैक्ट उनको अपना सब चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उनकी। उनको सिर्फ मैं आराम से जो कुछ चीज रह गई हैं इन दिनों में, दोस्त थिंग्स शुड डू कि ये ना लगे कि मैंने कुछ चीज छोड़ दी है। इनफैक्ट उनके पास अभी है। और जो आप दूसरे के बच्चे जो सिर्फ फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है उसको मालूम ही नहीं है कि मेंस में क्या लिखा जाता है, मेंस में क्या क्या, इंटरव्यू में कौन क्या पूछ सकता है। लुक एट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी फेस्ड द इंटरव्यू और मेंस एंड लुक एट द नॉट सेइंग that the person who is here, he would feel so. We are only discussing this so that they should not feel I'll be re-entering into the whole wheel, everything will be turned again. This yes, I'm here. I just have to rebrush few things and get into it. Right. तो कई बार लोग कहते हैं कि आपको जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो सफीन सर, कि आप प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हो तो आपको डेली गोल्स बना के रखने चाहिए, अपना डेली का टाइम टेबल आपको पता होना चाहिए। जब आप अपने डेली गोल्स फुलफिल करोगे तभी जाके फाइनली आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। तो ये डेली गोल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं जब आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, बिकॉज उस टाइम पे किसी भी एस्पिरेंट को आइडिया नहीं होता है कि इतना ह्यूमंगस सिलेबस के साथ हम अपने डेली गोल्स कैसे सेट करें। So how to set those daily goals and how to plan accordingly and how to stick to them? सी प्रॉब्लम ये होता है कि हम डेली गोल्स पे फोकस करके हम मैक्रो विजन्स बनाना भूल जाते हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आप मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल तक देखिए। आपके पास अगर एक साल है, एक साल प्रिपरेशन का है और एक साल एग्जाम का है, तो आपको पहले उस 2 साल से शुरू करना चाहिए कि आप किस फेज में कौन सी प्रिपरेशन करने वाले हो। मेंस के पहले आप क्या करने वाले हो, प्रीलिम्स से पहले आप क्या करने वाले हो। देन आपका जो शुरू होता है 12 महीने का जो टाइम टेबल, जो प्रिपरेशन जो एग्जाम से पहले के 12 महीने, उसमें आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड काम कब से शुरू करोगे, तो फिर आपके पास आपको लगता है कि 9 महीने बचे हैं। फिर उसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके फिर आपको आपके डेली गोल्स बनाने पड़ेंगे। सो यू शुड हैव योर 6 मंथ प्लानिंग, योर 3 मंथ प्लानिंग, योर मंथली प्लानिंग एंड देन योर। व्हाट हैपन्स विद मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इज कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा मोटिवेट होके या इंस्पायर्ड होके हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल के टारगेट्स अपने लिए सेट कर लेते हैं। अगर मुझे पता है कि मेरी रीडिंग कैपेसिटी नॉर्मली 9 घंटे से ज़्यादा नहीं है एंड मैं इनिशियली अगर 12 घंटे का टारगेट बना के बैठ रहा हूँ और फिर वो टारगेट फिनिश नहीं कर रहा, तो ग्रेजुअली दैट एक्चुअली अफेक्ट्स माई कॉन्फिडेंस लेवल। क्योंकि व्हेन यू आर नॉट एबल टू रीच योर गोल्स डेली, वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को खा जाता है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज कि अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी 5 घंटे की है, तो आप अपना जो टारगेट है वो 4 घंटे का बनाएं। 4 घंटे के बाद आप जितना भी अचीव कर सकते हो वो आपका लिए बोनस पॉइंट रहेगा एंड सबकॉन्शियसली वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करेगा। ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी और इस हिसाब से आपका जो डेली टारगेट है वो चेंज होता रहेगा। कभी कभी ये भी इशू होता है कि डेली टारगेट सेट करने के बाद वो काफ़ी बार पूरा नहीं हो पाता ड्यू टू अनसीन सर्कमस्टेंसेस, और उसकी वजह से एक एडेड प्रेशर हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली बनना स्टार्ट हो जाता है
कि मेरे टारगेट्स इनकम्प्लीट, और उसकी वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हैम्पर होना स्टार्ट होता है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आपके मंथली टारगेट्स होने चाहिए, आपके डेली टारगेट्स होने चाहिए, लेकिन वो आपकी जो कैपेसिटी है उसको डिसाइड करने के बाद होने चाहिए। प्रॉब्लम होता है कि हम बाजू वाले से कंपेयर करके, अपने आसपास वालों से कंपेयर करके अपना टारगेट सेट करना स्टार्ट करते हैं, और व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन देयर इज ऑलवेज अ डिसअपॉइंटमेंट। सो आप अपने लिमिट्स जानिए और अपने लिमिट्स के हिसाब से डेली टारगेट सेट कीजिए, उसको इवनली डिवाइड कीजिए कि आपके पास अगर 6 घंटे है तो आपको उसमें से 3 घंटे करंट्स को देने हैं, 3 घंटे स्टैटिक्स को देने हैं, क्योंकि एग्जाम का वेटेज भी 50-50% रहता है। फिर उस 3 घंटे में क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है, राइट। स्टैटिक अगर पढ़ रहे हो तो कितना पढ़ना है, कितनी बार रिवीजन करना है, आपको रिवीजन का टाइम भी अलग रखना पड़ेगा, और इस टाइम लिमिट को स्टिक रहना पड़ेगा। आप अगर इमोशंस में आ गए कि मुझे आज पॉलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं पॉलिटी पढ़ता जाऊँ और मैं करंट्स को नेग्लेक्ट कर लूँ, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट। एंड दैट इज पार्ट एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सर्विस ऑल्सो, कि आपको जिस चीज़ को जितना वेटेज देना है उतना देना पड़ेगा, आप इमोशंस में आके काम नहीं कर सकते। तो ये ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं वहीं से शुरू होती है। एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि आप अपने आप को एनालाइज करके कंपार्टमेंटलाइज कर दीजिए हर एक चीज़ को, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। यू आर नॉट सपोज टू कवर 100% सिलेबस, एंड यू आर नॉट सपोज टू गेट 100% मार्क्स ऑल्सो टू बी इन द सर्विस। 70% सिलेबस आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और उसमें से आप 100% देके आइए, यू विल डेफिनेटली गेट 60% मार्क्स, एंड दैट इज मोर देन इनफ टू बी इन द सर्विस। Right, sir. So, I don't know, Navneet sir is still not here. So, the team is talking to him. Uh, Acha, I wanted to know, till then we can talk about something like this because I think काफी लोगों को interest आता है कि कैसी होती है Indian Police Services की training. So sir, Ravinder sir, you were there in training, or Sapin sir, you have just trained in few years back. तो क्या ट्रेनिंग की जो सिमिलैरिटी है, आपके जो एक्सपीरियंस थे और जो सपीन सर के एक्सपीरियंस थे, वो सिमिलर हैं या फिर कुछ चेंजेस आए हैं अभी ट्रेनिंग के उस प्रोसेस में? आई वुड से ट्रेनिंग सेम ही अभी भी, परंतु उसमें क्या होता है कि हमारा एक इंडोर ट्रेनिंग रहता है, एक आउटडोर ट्रेनिंग रहता है। तो इंडोर ट्रेनिंग है बेसिकली criminal justice system, CRC, all these things. तो और आउटडोर जो होता है वो बड़ा कुछ लोगों के लिए exciting रहता है, कुछ लोग यार सुबह उठना पड़ता है हमको 5 बजे, फिर हमको 5:30 बजे चैलेंज होना पड़ता है, फिर भागना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती हैं। आई थिंक नवनीत नो सर, आई गेस वो इज या प्रिया मैडम गॉट राइट। ओके, टीचर्स। तो Ravinder sir, I'm here, sir. जो मैं बोल रहा था कि आउटडोर्स हैं वो बहुत ही अलग रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो हमारे होता है एकेडमी, जनरली हमने ये देखा कि आउटडोर इंडोर्स का डेफिनेशन So sorry for interruption. I think, Sapin sir, can you hear Ravinder sir? Because I think the voice नहीं, is not आवाज audible clearly. आवाज थोड़ी टूट टूट के आ रही है सर। रियली नाउ इट इज जी कमिंग। सर। Yes, sir. Now it's fine. Now it's fine. Yes, sir. हाँ, तो जो हमारे समय में था उसमें आउटडोर्स का बहुत एक्साइटिंग रहता है, कि इंडोर आप जैसे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, उसी टाइप का रहता है। बट आउटडोर जो रहता है, हम काफ़ी जल्दी सुबह उठते हैं, उसके बाद में फॉल इन बोलते हैं, हम सब लोग सीटी बजते और हम सब लोग नीचे आ जाते हैं। हमारे टाइम में ऐसा हुआ करता था, और सब वहाँ पे स्क्वाड्स बना दिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 90 ये थे IPS प्रोबेशनर्स, तो उनके 6 स्क्वाड्स में हम लोगों को डिवाइड कर दिया जाता दिया जाता है। तो वो जो स्क्वाड्स होते हैं, एक स्क्वाड में लगभग 15 लोग थे। तो उसके बाद में ये जो स्क्वाड्स होते हैं, ये सब उनका जो मार्चिंग रहता है, उनकी परेड जो रहती है, उनकी जो टीम गेम्स रहते हैं, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, ये सब चीज़ें रहती हैं। ये सब बहुत ही एक्साइटिंग रहती हैं, और इसके लिए सब लोग एकदम ग्रुप में रह के ये रहता है कि हम बेस्ट हों, हमारा स्क्वाड बेस्ट हो। So there are girls also, boys, they rub shoulders together, they try to win, they try to beat others. So that feeling of competitiveness generates there. और आउटडोर्स में दूसरी चीज मैंने ये देखी है, काफी सुबह उठ रहे हैं और सुबह उठने के बाद में ये सब चीजें कर रहे हैं, और लगभग 8, 8:30, 9 बजे जो है आप इंडोर क्लासेस के लिए जा रहे हैं। इतनी थकान होने के बाद इंडोर क्लासेस
That's actually a test of your stamina. कई बारी बहुत थकान होती है, नींद भी आती है और सो भी जाते हैं कोई ना कोई, बट आपको एकदम से जगा दिया जाता है, आप क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये फिर इंडोर क्लासेस, उसके बाद में शाम को फिर से हमारी आउटडोर क्लासेस होती हैं। आउटडोर में जो मैंने आपको बताया गेम्स वगैरह, उसके बाद में कभी कोई सीनियर ऑफिसर आते हैं, उनके लेक्चर होते हैं, तो रात को डिनर भी होता है। तो ये सारे एक सिस्टम पे रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें को सिखाई जाती हैं कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फील्ड वर्क, लाइक व्हेन यू वर्क the ASP or the SP, or when you become senior officer, so how you behave, how you have to treat people, आपको किस तरह से respectfully बोलना है, आपका फिजिक कैसी रहनी चाहिए, आपको स्ट्रेंथ आपकी कैसी रहनी चाहिए, बिकॉज जब आपके सामने कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही है तो यू हैव टू बी काम, बट यू हैव टू बी फोकस एंड फर्म, और सीधा जाके आप बोल ही नहीं सकते। यू हैव टू हैंडल इट पीसफुली, क्योंकि आपके जो लोग रहते हैं उसको भी कमांड करना है आपको। वो ये ना हो कि आपके हाथ से कंट्रोल चले जाए सिचुएशन, और आप कुछ भी हो रहा है उसके बाद में आप बहुत फर्म, हाई हैंडेडली जो बोला जाता है बहुत बड़ी वर्ड, वैसा ना हो। तो ये सब चीजें कंट्रोल में। वेलकम। Ah, he left. He left. He just wanted to give us a glimpse. So, वो so this is how भोकाल वाली एंट्री होगी फिर। हाँ, vocal वाले थे। So, Safin, I think you can add here a few things. सर We जय have, सर। Good I am evening, good. sir. I अरे please speak with us. I think there's some issue with his internet. Yeah. yeah. Safin, you can continue. Yes, sir. Yes, sir. I guess in the last session also we had discussed the same thing probably about training part, and fortunately or unfortunately on a physical training part there has not been any major change. Uh, मैंने उस टाइम भी mention किया था कि there was a series called Udan, which was recorded at NPA, and उसमें भी जो physical training दिखाई गई है way back in 80s or 90s, I guess we also had the same regime. So We will wait for some time so that you don't disappear again. So he's still, yeah. No, no, you can continue. He'll join. You can continue. yeah. So the You can continue. crux, I'm trying from my side. Yeah. overall crux of the training is to remove all the mental blocks which you come with, because everybody is coming from a civilian life. उन्होंने books और normal life के अलावा uniform life देखी नहीं होती. So we had so many limitations in our mind. For example, I never thought that I can run for 16 kilometers at a stretch, or I can walk for 42 kilometers at a stretch with 15 kg load on my shoulders. But yeah, I did all of those things during training, and be it bungee jumping, be it horse riding, be it swimming. I had literally a next level of water phobia, and still I prepared myself for swimming, and I finished the exam also. I cleared the exams also. So diving into 18 feet depth was something I could never imagine, because I had that next level of water phobia. But I did it. I did it, and I finished it, and I cleared it also. So the best part of NP is that whatever you think that you cannot do, they make you do exactly the same things, so that when you are on field, you have no mental block in your inside your head that you actually can't do that. The situation can get worse to any level, but you have that patience in your mind. You have that confidence in your body language as well as in your mind that you can manage those things, and that's how we can lead the force. So that is the major motto of NPO, that they remove all the mental blocks inside your mind, and they shape you into an Indian police officer. ये बहुत अच्छा एग्जांपल था। इनफैक्ट मैं भी बोलना चाहूँगा इसमें, मैंने कभी स्विमिंग नहीं किया था लाइफ में, और हम वैसे ठीक है रनिंग कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मैंने वहाँ जाके सीखा, और Sir. वहाँ हम लोगों को क्लियर करना होता है, मैंडेटरी होता है। अगर नहीं करते तो आपको दोबारा बताया जाता है, यू हैव टू क्लियर इट, एंड देन यू गेट योर सर्टिफिकेट, यू हैव क्लियर्ड द प्रोबेशनर पार्ट ऑफ IPS. Yes. That's very important. And one day I started swimming. So for 500 meters, so that boosted my confidence level. It was one of the incidents which happened when I was swimming one day. Right, sir. Right, sir. Right.
So I think this exam like really gives you challenges before the preparation and after getting into services. It is all about challenges. More are after getting into service. Right, sir. True. So, so I would like to ask you, Ravinder sir, as you have achieved so much, like you achieved and you got into civil services, and then after getting into civil services, you achieved so much. So that requires like discipline and routine. And many aspirants like fail to achieve this part. They do not have that discipline in their life. They do not have a routine. So how to maintain a disciplined life and how to sustain a routine in their life? Yeah. See, discipline, you have rightly said, discipline बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं होता, आप सिर्फ प्रिपरेशन में ही नहीं, लाइफ में भी जनरली आप देखिए, अगर डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ में, so you probably able to succeed or achieve what you want to. So discipline is very important. Like today also, now I have completed more than 25 years. Still, I get up at around 4:35, and has been there since when I was in 10th class. तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं क्योंकि कुंभ मेला के लिए तैयारी कर रहा था या रात को मेरे को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उस टाइम पे शायद नहीं मैं वो दे पाता उतना टाइम, बट जब भी लगता है सो माय बॉटम लाइन इज कि मेरे को इतने बजे उठना है, मुझे ये चीजें करनी है, या मेरे को क्या क्या दिन में काम करना है. मैं कभी बोलना चाहता था कि मैं आज कर रहा हूँ, आई टू यू दैट दिस इज व्हाट आई डू माय दीस थिंग्स, आई कीप ऑन स्ट्राइविंग, ये मैंने माय रूटीन दिस. So me it this doesn't me waver here and there. तो मेरे को वो मुझे ये चीज़ करनी है, मुझको उठना है, मुझको मेडिटेशन, जिम करना है, रन करना है, उसके बाद में 10 बजे मेरे को वापस आना है. तो अगर ये डिसिप्लिन है, then you can achieve anything. This is how I see. Physically also, mentally also, officially also. आप mentally और physically नहीं है आप ठीक से, तो आप क्या आप ये चीजों को करेंगे, तो ये आप किसी भी चीज के ये so my request to all those who are listening today, they must have a firm routine. Try to stick. My case, it doesn't happen 100 times, but I try to be there. मैं बस हटता हूँ फिर वापस आता हूँ. It's the center of gravity keeps on pulling me on in. This is how I and this is how I do. Right, sir. Sapin, so nowadays there are two newspapers that are very, very famous, like Indian Express and The Hindu. And aspirants are always confused that whether to go with both of them or just choose one. So, what do you suggest that they must read both the newspapers together or just go with one, stick to one newspaper properly? Because Indian Express and The Hindu are like equal to each other, right? I think. See, I won't name any particular newspaper agency, but from last 1 or 2 years, what I have noticed is that one particular newspaper is leaning to one side, okay, which is not good for a balanced thinker or to have a critical outlook. So I just advise all the aspirants that stick to the one which gives you the balanced reporting, which gives you pros and cons of everything, which has not any, not leaning to any one particular side, so that you will have that balanced outlook. What happens is that if you are too critical about something, you will have eventually you'll develop that thought process, which will always be very critical about everything, and which is not good for a civil side, right? You should have that vision to see both positive as well as negative sides about each and everything. It's not only about looking at negative sides, it's also about appreciating the positive side. It's also about appreciating the negative side and finding out the constructive solution. So with the newspaper which provides you both the things, critical analysis as well as constructive solutions, go for that particular one. Before mains, I don't think there is need for two newspapers. For interview, you can refer to 2-3 newspapers so that you can have various perspective, diverse perspective about one particular issue. Right, sir. So, yeah.
No, it's muted, I guess. Are you? That is some serious issue, I guess. Actually, he's having some network issues. So he's trying to connect, but then I'm really sorry. Please continue. Yes, sir. Ravinder sir, now there are a few people, there are like generally, I'm not just talking about aspirants, generally, people do not know how to find their passion in life, find their purpose in life. No, so they're mostly struggling with this thing. कि मेरा passion क्या है exactly? Like people say, mostly motivators and life coaches tell us that you have to find your purpose, you have to find your passion in life. So how to find that passion? How to find that purpose of your life? That what you want to do, what you are here for? Yeah. See, I see it this way. Whatever makes you happy, that is your passion. So the happiness one should derive. I was an engineer. I'll give my example. I was working. I think somewhere I was not happy. But since I joined uniform services, since my dad was also in police service and I saw him, there's some connect or something which not making me, uh, happy Happy to the to the fullest. fullest. But But since I since I've joined this joined this police police force, force, I I thought that thought I that I have was to look for it, and that answer will come from your inner self only. You will have to consistently ask yourself, मुझे किस चीज में खुशी मिलती है? अब कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुलिस में आके भी खुश, तो दूसरी साइड इनकम टैक्स में होता तो अच्छा रहता. So there will be people who will never. So because of life, you have एक आपको स्टेज ऑफ लाइफ. अब जहाँ पे हैं उसमें खुशी. sorry, sir. Your voice is cracking. Your voice Is is it? cracking a bit. I'm sorry, this, as we are growing technologically, internet wise, I think things are going bad. I don't know why. We'll have to ask you getting me. Are you getting me now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So purpose, again, it keeps on changing with each stage of life. Today, maybe I have done a lot of policing, but next, that happiness, that purpose you seek, and that answer will come. Go to people and ask them what should be my purpose, what will give me happiness. Some people find happiness if they get a lot of money, if they get promoted, they get happiness. But is that your purpose? Whether they're happy or. तो ये चीजें जो है ये चेंज भी होती रहती है समय के साथ साथ. तो मुझे लगता है कि आपको खुद अपने आप से ही पड़ेगा. यू क्लोज योर आंसर्स, stay with yourself, maybe in the morning for some time. This is how I see finding purpose of life. So when I don't know Right, it is sir. more philosophical, but trust me, I No, do no, it sir. every day. It In the was directly hitting the bullseye, sir. I sit, talk to myself. Though I give around 2 hours to myself, plan for my day. I plan for my life. Sir, that's how practically it should be, sir. For sure. Hmm. Completely agree, sir. Thank you. Safin, sir. Safin, sir, coming to you, there are a few people who have got struggles at home, who have financial problems or maybe personal problems, and then they have to prepare for this examination. And while preparing for this examination, they need to have a single minded goal, like they do not have to concentrate on two or three things together. So, how to deal with those situations when you have problems at home, when you have health problems or health issues, and then you're preparing for this exam also? See, everybody is having a unique situation. No two aspirants have a similar situation to prepare, and nobody has that ideal situation also to prepare. Everybody must be facing some or other issue in their life. Maybe it may be mental, maybe psychological, physical, health issues, financial issues, societal issues, whatever. But when you are clear about your goal, I guess those issues don't matter much. If there are issues, if there is struggle, that means you are moving forward, right? If your journey is getting tougher and tougher day by day, that means you are climbing up and up. If it is getting simpler, if it is getting easier, then that means you are,
on a descending path. So you must give yourself that motivation that if you are facing problems, that means you are going ahead, you are moving forward. And you know there is no smooth road for any beautiful destination. So if you have planned high, if you have aimed high, if you want to reach somewhere where people recognize you, when people consider you as successful, struggle is inevitable. You have to accept the fact कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आपको ये बंदा सपोर्ट कर रहा है, आपको ये बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा है. Once you accept the reality to the fullest without any complaint, I guess it becomes easy to deal with those things. काफ़ी लोग ऐसे होंगे आपके सराउंडिंग में जो आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाएंगे कि ये आपके बस की बात नहीं है. एक्चुअली दे से बिकॉज उनको लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं है, राइट? तो इन सारे लोगों को जो जवाब देना है वो आपको सक्सेसफुल होकर देना है. लेट योर सक्सेस स्पीक, struggle in silence and let your success shout, right? And that is very true. फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, बट व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे. और वो बात बहुत डट के कही गई है, एंड इट इज ट्रू इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. वी मस्ट रिस्पेक्ट वट एवर द डिफिकल्टीज वी गेट इन अवर लाइफ, एंड वी मस्ट थिंक कि हाउ टू गेट ओवर इट. आपके पास मैंने पहले भी बताया हुआ है, हर सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप सिचुएशन को पकड़ के बैठ के रो लो, या फिर आप वहाँ से आगे हो लो, राइट? तो अगर आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे या सोसाइटी नहीं मान रही है, you accept it and now you move forward, you find the solution and you move ahead, right? And once you start moving ahead, the journey becomes easier. So instead of focusing on the walls, focus on the road. It will definitely lead you to somewhere, Right. right? Ra- रविंद्र सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू, लाइक आप दोनों इंडियन पुलिस सर्विसेज में हैं, और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स यहाँ पर अभी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस सर्विसेज के लिए ही एम कर रहे होंगे. सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम कि कैसा जॉब प्रोफाइल होता है, किस तरीके से उनको अपना माइंडसेट रखना चाहिए इफ दे आर विलिंग टू गेट इनटू इंडियन पुलिस सर्विसेज? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास में जो सिचुएशंस आती हैं हर रोज अलग अलग तरह की होती हैं. लॉ एंड ऑर्डर हो, क्राइम, क्रिमिनल आता है, विटनेसेस आते हैं अपने, और विक्टिम आता है. तो ये एक बहुत स्ट्रेंज सी सिचुएशन रहती है. ऐसे केसेस आते हैं कि किसी बच्चे को छेड़ दिया किसी ने, या फिर सीनियर सिटीजन है उसके साथ में हादसा हुआ, उसको फ्रॉड करके अकाउंट से पैसे निकाल लिए. तो ये हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशन हैं. उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है. अगर मैं अपना पूरा दिन देखता हूँ, सुबह से लेके जब तक मैं घर पे आता हूँ, उसके बाद में भी इतनी तरह की चीज़ें आती हैं हमारे सामने. कभी कोई बच्चा आ रहा है, उससे भी हमको इंटरेक्ट करना है. पॉलिटिशियन है आगे हैं, तो उनसे भी इंटरेक्ट करना है. कोई मीडिया, कोई और हमारा खुद का स्टाफ भी. सी हाउ रोल कीप्स ऑन चेंज. In that situation, person is same, but his role is continuously changing. So for that, you have to do is you will have to prepare yourself. You cannot react to each and every. पे नहीं कर सकते कि they would like to listen to what you say. They would like to you. It will be many people, but Kapil would also agree. कुछ लोग से मिलने के लिए आते हैं. तो मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, सिर्फ देखने के भी लोग आते हैं. सोचिए कि किस सिचुएशन लोग काम करते हैं, और आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते. अदरवाइज इफ आई डोंट बिहेव प्रॉपरली विद वन पर्सन, वो जाके पूरे बाहर जाके ये ये आती है, तो सोच ये तरह नेगेटिव पब्लिक. इसी वजह से आपने देखा हो कई बार हमारे कांस्टेबल हो या फिर पुलिस हो, तो अगर कुछ बिहेव करते हैं तो वो आदमी या उसकी भी फैमिली, या अगर चेयर में हो तो मेरी भी फैमिली, मेरे कुछ चीज़ें हैं, बट वो कोई वो सुनना नहीं चाहता. नहीं क्यों? सीपी से या पुलिस वाले से मिलने क्या है, इट इज ड्यूटी टू लिसन एंड गिव जस्टिस, instant justice also, which again is very difficult. This is a very सिचुएशन. तो मेरी तो बहुत अच्छी से होती है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्टाफ की भी
उनका वेलफेयर भी आपको देखना है। तुम्हें मान लो पुलिस लाइन में पानी नहीं आ रहा, तो वो हमारे पास में आके बोलता है कि साहब हमको पानी नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन। तो ऐसी सिचुएशन, तो इट इज अ वेरी ट्रिकी एंड आप अगर सबको सुन भी लेते हैं और उनका कर देते हैं, क्योंकि इंस्टेंटली आप नहीं कर सकते। अगर आपने अपने ऑफिस फोन कर दिया कि मैं इनको भेज रहा हूँ, के ऊपर एक्शन लो, तो वहीं से ही आपका इमेज, आपके बारे में पॉजिटिविटी, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में उसकी इमेज बनना शुरू हो जाता है। सो ये सब चीज़ें बहुत, जैसे बोलते हैं ना, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड ऑफिशियली सब चीज़ें आपके एकदम से अलाइन होनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं होता, देन यू आर इन ट्रबल। देयर इज नो फ्रेंड ऑफ योर्स, कोई आपको अच्छा नहीं बोलेगा। इवन मीडिया कीप्स ऑन वाचिंग कि इसने कहाँ पे गलती की है, तो वो आपको हाईलाइट करते हैं। ट्विटर आजकल आ गया या सोशल मीडिया, कहीं पे भी। सो यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिचुएशन, सो दैट पीपल डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दैट। Saffin sir, something from you. So I would like to inform you both that we'll be waiting for like 5 more minutes, and if Navneet sir isn't able to join, then I'm really sorry to everybody, you both, that we might have to end this session like this. Ma'am, there is no need to be sorry. We can arrange another session when sir is area where there is a good enough network. But yeah, regarding the service and IPS the service, definitely it's a good, satisfying experience till now, so far. सर का तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। मेरी जितनी उम्र नहीं है सर की, शायद उतनी नौकरी हो चुकी है, तो he is the right person to speak on that. But yeah, definitely this 1.5 years of field experience has been very satisfying. सबसे बड़ा इशू या सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है हमारे लिए कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कि अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एक साइड कमोडिटीज़ या कोई चीज़ होती है और दूसरी साइड लोग होते हैं। तो आप, कहीं पानी का इशू है, कहीं बिजली का इशू है, कहीं रोड्स का इशू है, राइट? तो आप या तो रोड देते हैं या नहीं देते, पानी देते हैं या नहीं देते। फॉर अस देर आर पीपल ऑन बोथ द साइड। तो आप किसी एक को अगर सुनोगे, दोनों को सुनोगे, लेकिन आपको एक्शन तो किसी और एक की फेवर में लेना पड़ेगा। So definitely you are going to disappoint another party for sure, right? And you never know कि वो disappointed party कहाँ तक जाने वाली है और वो किस लेवल तक आपके अगेंस्ट जाने वाली है, because we are always third party in the matter of two people, right? So that balanced approach and दोनों को साथ में लेके चलना is the main task we have to do, right? At the same time, since IPS is more towards the management side, right? We are in a managerial position where we have to lead a team. We have to see the welfare. We have to see that law and order is maintained. We have to see that all the kind of scenario is maintained. That's where your I can say manpower management abilities come into picture. So that's where it becomes very tricky. एक बाजू मीडिया होता है, एक बाजू पॉलिटिकल सिनारियो होता है, एक बाजू पब्लिक की एक्सपेक्टेशन होती है और एक बाजू आपकी अपनी फोर्स है जिसको आपको मोटिवेट रखना है। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके इनने के बाद आपको आपकी पर्सनल लाइफ भी देखनी है। ऑफ कोर्स इट्स वेरी टफ ड्यूरिंग योर एएसपी शिप एंड फर्स्ट फ्यू years of SP ship, where things are actually always new for you. Sir would definitely agree with that. जिसमें आपको पर्सनल लाइफ को थोड़ा बैक फुट पे भी शायद रखना पड़ सकता है, क्योंकि यू नीड टू ऑलवेज परफॉर्म, और वो एक सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट रहता है। बट ओवरऑल जैसे कोई सुनसान रास्ते पे अगर कोई लड़की अकेली जा रही है, उसको लग रहा है कि उसका कोई पीछा कर रहा है जहाँ पे और कोई नहीं है रात को 2 बजे, और अगर दूर से उसको एक रेड और ब्लू लाइट दिख जाती है और फिर उसको जो सेंस ऑफ सेफ्टी और सेटिस्फेक्शन फील होता है, दैट इज व्हाट वी वर्क फॉर, दैट इज व्हाट वी आर प्राउड ऑफ। सर सर अभी कुछ टाइम में प्रीलिम्स है, लाइक हार्डली 50 days आर लेफ्ट फॉर द प्रीलिम्स, अपकमिंग प्रीलिम्स. So what would you like to suggest and what would you like to advise those aspirants जो इस बार prelims दे रहे हैं? Both of you sir. Ravinder sir, first you. सो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो विश गुड लक, और आप जो करना चाह रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ और बहुत कॉम्पिटिटिव चीज़ में आप लोग एंटर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप एंटर कीजिए।
मेक एवरीथिंग क्लियर कि आप किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या आपका ऑप्शनल है और उसके लिए आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दे शुड नॉट बी एनी वेगनेस इन दीज थिंग्स। तो आप उसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है वो ज़रूर देख लीजिए। करंट अफेयर्स जो है वो एक आपका क्लैरिटी उसमें चाहिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स में। जैसे हमने पीछे भी चर्चा भी की थी, कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो भी एक बहुत राइट। चीज़ है। यू आर सेइंग समथिंग? हाँ। नो सर, राइट सर। तो बुक्स का भी आप ज़रूर कर लीजिए। मैंने अपने वेबसाइट में भी लिखा है कौन सी बुक्स इम्पोर्टेंट हैं। तो वो एक आप वेबसाइट पे मेरे देख सकते हैं, या फिर आप दोबारा चाहें तो प्रिया वी कैन अगेन सेंड लिस्ट ऑफ बुक्स विच कैन हेल्प देम। और सी सेट के लिए जी क्या, सर। बिकॉज दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट विच वॉज नॉट देयर इन आवर टाइम। बट ऑफ कोर्स you must know how to prepare, what books to be referred to। और ये सब चीज़ें आपको क्लैरिटी इसमें होना बहुत ज़रूरी है। यू कैन हैव अ ग्रुप स्टडी ऑल्सो। अगर आपके पास में टाइम कम है तो अगर 4 लोग या ग्रुप में आप पढ़ते हैं, इट विल ऑफ कोर्स हेल्प यू। यू मे ज्वाइन सम क्लास ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रेपरेशन। या आप रिवाइज करना चाहते हैं या वहाँ पे कोई आपको नई चीज़ मिलती है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू। परंतु वही करना है ऐसा भी नहीं है। ये आई एम जस्ट गिविंग यू सजेशन। आपका ऑप्शन जो है उसमें उसमें बहुत आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं वो ऑप्शन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, मेरा लेवल ऑफ, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं या बुक के ऊपर ही आप उसको साइड पे कहीं पे स्पेस में लिख सकते हैं वो पॉइंट्स को, सो दैट आप उसको जब टाइम कम रह जाता है उस टाइम पे आप उसको रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं। कम समय में आप रिवाइज कर पाएंगे उसको। तो वो भी एक चीज़ आप कर सकते हैं। और कुछ जो आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं जरूर उसके एक पॉइंट्स बनाते रहिए, क्योंकि दे विल ऑलवेज हेल्प यू। नहीं तो आप भूलते रहते हैं, आपके दिमाग में कुछ आ गया, जस्ट राइट इट समवेयर। और उन 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 पॉइंट्स पे ज़रूर दोबारा से उसके बारे में सोचें, किसी से बात करें अगर आपको उसका सॉल्यूशन या आंसर नहीं मिल रहा। तो ये इस तरह की प्रिपरेशन आपकी रहनी चाहिए कि जिसमें आप कोई भी पॉइंट ना छोड़ें, क्योंकि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट नो, एंड योर प्रिपरेशन शुड बी इन 360 डिग्रीज। सो इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर। सो मेंटली यू विल बी एट ईज कि ठीक है मैंने पढ़ा तो है। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। यू मे नॉट मास्टर एवरीथिंग, बट यू मस्ट नो, सो दैट ड्यूरिंग द एलिमिनेशन राउंड आपको जो 4 चॉइसेस हैं उसमें से कम ये तो आंसर है ही नहीं इसका, या ये आंसर हो सकता है, ये आंसर ज़्यादा अच्छा है। सो वो दी हाउ यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आजकल ऑनलाइन भी आते हैं प्रिपरेशन के लिए पेपर्स, या फिर आप पेपर जो अपने ऑफलाइन जो मिलते हैं एग्ज़ाम क्वेश्चंस, तो आप वो भी कर सकते हैं, बट वो ज़रूर कीजिए। जैसे और उससे आपको फ़ायदा भी है, जैसे आप 2-3 घंटे में पढ़ लिए फिर आप बोर हो रहे हैं, तो आप इमीडिएटली वो आंसर क्वेश्चन से पे शिफ्ट कर जाओ। क्वेश्चन से बोर हो गया फिर से आप सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर जाओ। सो दिस वे यू विल कीप योर सेल्फ एंगेज, because time is less, and that will keep you engaged, that will keep you fresh also। तो ये सब चीज़ें आप इंटेलिजेंटली करेंगे तो इन चीज़ों का बहुत आपको फ़ायदा होगा। और आप ये समझ के चलें कि मैं क्रैक करने वाला हूँ, मुझे क्लियर करना ही है, मेरे पास नेक्स्ट ईयर के लिए टाइम नहीं है, ऐसा